हाँ जी संतोष जी। मैं कह रही थी, मैंने कहा मेरा नेफ्यू एंगेज उसकी रिंग सेरेमनी कर रहा है ब्रदर 17th को, कह रहा था दीदी आजा टिकट भेज देता हूँ। मैंने कहा भाई तू तो टिकट भेज देगा, लेकिन रास्ते का जो हैसल है वो कौन करेगा टॉलरेट। बहुत मुश्किल है। So I said no way. Right now I'm not coming. In the wedding we will see. So for me ऐसे हुआ था कि मैंने अपना मेरा एक गाना रिकॉर्ड किया है और इट्स अ वेरी गुड, बहुत अच्छा बन गया वो गाना, वेरी गुड पेपी पंजाबी सॉन्ग, आई मीन फुट टैपिंग you can say. It's a like medley of many folk songs kind of thing. So it came out very nicely. I talked to a few companies, and one of the company, they heard the song, they said okay, we'll do it. Oh wow, So great. we launched the song for you, but and they asked for all the details. They asked me my PAN card, Aadhaar card, and all the things, and my music director's details. They asked me to get the lyrics. They asked me for my photographs. Then they asked me for the, the minus one track, and we felt that these are the terms in the music industry. So anyway, but when I sent everything yesterday, this process had been going on for the past 3-4 weeks. Yesterday they just said, we'll have some legal problem because these companies, they have a lot of legal issues, so we can't launch your song. So that was like, and I had to postpone my plan according for the launch of this song because such a big company had agreed to launch my song. So I postponed my program. I postponed my plan to come to Canada. I know. I mean, this is funny and sad, but still I can't help it. So this is how my plan is getting delayed and delayed. Ab to khair, it's not possible. Ticket ka dekho na. I saw one of your picture with blue shirt. You are singing. Yeah, that is वो मैं बुलाती रहती हूँ उसको. मेरा म्यूजिक डायरेक्टर है, कंपोजर डायरेक्टर है मेरा. मेरे साथ कीबोर्ड बजाते हैं शोज में, तो वो आते हैं तो उनको कई बार बुलाते रहते हैं प्रैक्टिस के लिए. मैं बुलाती हूँ ना, तो कभी कभी लाइव चले जाते हैं. आई गो लाइव. I saw DC grew to reach 1K subscribers. That's a milestone. I know. I would like to know, how did you reach that much? Because I'm eager to reach that much right now. I'm on 82. It's really hard because because we had planned so many shows, we organized so many shows, and we brought in so many new artists. And with each artist, we would ask people to subscribe to our channel, subscribe to this series. Thank you for subscribing to our channel. And then we would ask them, the participants, to, ask their friends and families to subscribe. And we would also keep on asking people. And it's like, minnat, you have to keep requesting people. Oh, it's a lot of hard work. But at least you reached it, so that's good. So now the next goal is 10,000. Yeah, of course. We'll be there soon. Okay, so it's 4:20, and so 2 more people have joined us, Brij Mohan ji and Rakhi. Rakhi ji, yeah. Shashi Jain and Brij Mohan Jain ji. Shashi ji and Rakhi. Yeah. Hello. Hi. Hello everyone. Hello ji, Rakhi ji. Hi. Hello. Hello ji. Welcome. Hello Mita ji. Welcome. Dr. Saab. Thank you. All right, Meeta ji, shall we get started? Hanji. So, okay, good evening everyone in Canada, and welcome to yet another very useful session on eating disorders by our co-host, Guruji, Gurudat ji.
And on behalf of Moksha Foundation, I welcome you all. As we all know that Moksha Canada Foundation is an organization which has the aim and objective to share and spread happiness in the community through knowledge and entertainment. So, and spread our culture to learn about diverse cultures of the world. So Moksha Canada is such an NPO wherein we have the seniors program, and I welcome you all on this program. So today's session, we are going to have Gurudat Ji talking to us about the eating disorders. We all eat wrongly. We all know that we eat wrong foods. We all know that we are eating wrong food, but still we keep on eating that food. Still we will listen. Still we will listen. We know all the time. Even with me, it's like that. I mean, I know ye nahi mujhko khana, but still I'll keep eating that. And naturally, this wrong habit or wrong eating will lead us to some Somewhere. problem. Yeah. ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ it takes you to the wrong destination. Yeah. And secondly, there are so many misconceptions about the food that we come across. Sometimes we use our knowledge, and sometimes we also use the knowledge of WhatsApp University, which can be dangerous for us. So Gurudat Ji has been practicing homeopathy for almost last 50 years, and he's an acclaimed homeopath. He was principal in India in Homeopathy College, and even in Canada, he's been practicing homeopathy for so many years. And we should, I think we are fortunate that we're going to make use of his knowledge about wrong habits or the right habits as far as eating is concerned. Welcome, Gurudat Ji. Thank you, Ji. Thank you, Meeta Ji. बहुत बढ़िया आपने इंट्रोडक्शन मेरी करवाई. वैसे सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कह देने से अच्छा है. जैसे बसंती ने भी कहा पहले मूवी में, प्रभु आप सबको जानते हो, अंतर्यामी हो, लेकिन फिर भी कह देने में कोई हर्ज नहीं है, याद दिलाने में. तो ये ऐसे ही कहते कराना अच्छा लगता है. सबसे आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, और सब जानते हैं इसके बारे में. कोई नई बात नहीं है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ. ये है कि खाना. सबसे इसमें बात में आई कि हमें ये जो टॉपिक हेडिंग रखा गया है, डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग. ईटिंग डिसऑर्डर से पहले कि क्या डिसऑर्डर है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑर्डर क्या है. अगर हमें सब चीज़ का ऑर्डर मालूम हो अच्छी तरह से, तो शायद हम डिसऑर्डर ना करें. और अगर कभी डिसऑर्डर में जाते भी हैं, जैसे कि हम ड्राइव करते हैं, मालूम है कि हमें एक 100 की स्पीड है, जैसे यहाँ पे या कहीं जगह 120, जो भी लिमिटेड स्पीड होती है उसके ऊपर हम चलते हैं. लेकिन जब कभी गड़बड़ करते हैं तो फिर हमें उसकी टिकट मिलती है, चालान होता है, हमें फाइन हो जाता है. तो इसी तरह से हमें मालूम होते हुए भी कि भाई अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो मुझे नुकसान होना है. यहाँ पर भी ये होता है कि जानकारी होने के बाद में भी हम अभी जैसे बात कर रहे थे, गलत खाना खाते हैं तो फिर उसका नुकसान तो हो गई. तो ये हमें ये सोचना चाहिए खाने से पहले कि हमें अपने को नुकसान में डालना है या हमें अपने को फायदे में रखना है. सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो खाना है कि क्या चीज क्या है, किस लिए खाते हैं, हम क्यों खाते हैं. अगर हम ये चीज समझ लें तो शायद हमें बहुत सी चीजें और समझने की जरूरत ना पड़े. फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि जैसे कल मैं देख रहा था करोड़पति में, वो हम जो कहते हैं कि भाई हम पंजाबी हैं, जब तक पराठा नहीं अंदर जाएगा तो जो है खाने का मजा ही नहीं आता, पता नहीं लगता कि हमने खाया है. एनीवे सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन ये कि हम खाते क्यों हैं, ये फूड क्या चीज है. देखिए, कोई भी जो मशीन चलती है, ये जो हमारा शरीर है ये भी एक मशीन की तरह है, ये भी ऑटोमोबाइल है. लेकिन इसके लिए भी हमें ईंधन चाहिए, जिसे कहते हैं फ्यूल. तो आप जब ये समझ लो कि भाई
ये इसमें मुझे फ्यूल डालना है और कौन सा फ्यूल डालना है। जैसे कि आप अपनी गाड़ी में, जो डीजल की गाड़ी है उसमें हम डीजल डालते हैं, और जिस गाड़ी में गैस पड़नी हो यानी कि पेट्रोल डालना है तो हम उसमें पेट्रोल ही डालते हैं। सो ये चीज़ें अगर थोड़ी सी भी हम अपने दिमाग में रख लें कि हमें कैसे करना है। और सेकेंडली खाने के साथ साथ जो ये भी है कि हमें मौसम के हिसाब से कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। जैसे गाड़ियों में कूलेंट लगा होता है, या गर्मियाँ आती हैं तो हम एसी चलाते हैं, और सर्दियाँ आती हैं तो हीट चलाते हैं। तो वो भी कुछ साथ में जो एसेसरीज हैं खाने के साथ या अपने फ्यूल के साथ, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक अभी उन्होंने बात की थी जीभ की, ज़बान की, जो स्वाद है, भाई देखो जो ज़बान का और मुंह का काम यह है कि हमें खाना लेना है और अंदर डालना है फ्यूल को। जिस तरह की कि वो आप ये कह लीजिए कि कड़छी होती है, कड़छी से आप हलवा भी डालो प्लेट में, उससे आप साग डालो प्लेट में, कढ़ी डालो प्लेट में, वो जो है कड़ा जो आपकी कड़छी है या जो चम्मच है, जो स्पैचुला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम अपनी जीभ को भी इसी तरह से इस्तेमाल करें तो शायद हम बहुत से जो है अपने आप को ओवर ईटिंग या ये स्वाद के बंधन में ना बांधते हुए तो हम उससे आज़ाद रह सकते हैं। और या ये सोच लो कि ज़बान का स्वाद तो सिर्फ ज़बान तक है, जो पेट में अंदर गया सो गया, कुछ भी आपने डाला अंदर जाके कुछ नहीं मालूम पड़ता। गले से जो नीचे उतरा, चाहे वो खीर उतरी है, चाहे वो हलवा उतरा है, चाहे वो करेले का पानी उतरा है, एक बराबर है। सो व्हाई डू वी वांट टू ईट, ये एक चीज बहुत ही ज्यादातर अच्छी तरह से सोचने की है कि हमें क्या खाना है और क्यों खाना है, किस लिए खाना है, हमारा काम किस तरह का है। ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने बैठे रहना है, आपने जो है अध्यात्म का काम करना है या आपने स्टडी करनी है, तो उस हिसाब से अपने को वो खाना चुनना चाहिए जिससे कि आप में लेथार्जीनेस ना आए, लेजीनेस ना आए। तो हमें ये अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए। और सबसे दूसरा क्वेश्चन ये करना चाहिए कि क्या हमें भूख लगी है, आर यू हंग्री। ये नहीं कि मुर्गी की तरह हर वक्त ही कुछ ना कुछ खाते रहो। अब मुर्गी का तो हाजमा इतना तेज होता है कि इधर से खाती है उधर से निकाल देती है, और वो छोटे छोटे खाती है। सो एक खाना खाया तो बहुत बार होता है, बीवी क्या देती है या भाई क्या देता है, बहन क्या देती है, माँ क्या देती है, बेटा ये मैंने बनाया जरा स्वाद ही बता दे इसका कैसा है। अब वो स्वाद में एक प्लेट खाई जाती है हलवे की। सो वो बहुत जरूरी है कि हमें भूख है या नहीं है, क्योंकि वो जो भूख के बगैर खाना है वो हमें जाके अंदर तंग करता है, कई तरह की बीमारियों भी लगाता है। और हमारा जो ओवरवेट, खासकर जो ओवरवेट है, जो ओबेसिटी को से तंग आए हुए हैं या उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उनको तो ये बहुत ज्यादा सोच के खाना चाहिए कि हमें क्या खाना है और भूख लगी है या नहीं लगी। और इसलिए अपने आप के ऊपर आपको जो है ये कह लो कि कंट्रोल करना, बी हार्ड टू योर सेल्फ, लिसन टू योर माइंड, नॉट टू योर डिजायर। देखो मैंने जो लिखा, क्योंकि जो डिजायर है वो तो बहुत कुछ होती है, और जो माइंड है ना हमारा, वो लॉजिकली थिंक करता है। कभी जब वो लॉजिक आपके दिमाग में लॉजिकली आप सोचोगे तो हो सकता है कि आप बहुत सी ऐसी गलतियां हैं खाने के अलावा भी, उससे आप बच जाओगे। और दूसरा यह है, टेक योर टाइम व्हाइल ईटिंग। खाने के लिए आराम से बैठो, आराम से खाओ। ये नहीं कि उसमें आप हबड़ा दबड़ी में खाना खाओ, बड़ा दबड़ी में कभी मत खाना खाओ। और जैसे आपको लगे कि मैं फुल हो गया हूं, और ऊपर से मत लो। मुझे मालूम है कि हमारे घरों में अक्सर होता है, ये भी कहती है स्वाद है, स्वाद लगी सब्जी तो फिर और क्यों नहीं लेते, थोड़ी सी और ले लो या आधी रोटी और खा लो। अगर ये कह दिया कि नहीं मैं बस अच्छा मैं सब्जी स्वाद नहीं लगी हूँ। तो इन क्वेश्चन से बचने के लिए आप अपने आप के दिमाग में पूरी तरह रखें, ये खिलाने वाला भी रखें और खाने वाला भी चीज़ों को रखें। सो अपने आप को जब भी आपका पेट भरता है उसमें आप मोस्टली देखो ना, बहुत बार चीज़ों में हम अपने आप को कैसे रोक लेते हैं, कभी थक गए, यार मैं तो थक गया हूँ, हालांकि आप थोड़ा सा और चल सकते थे, कर सकते थे, लेकिन फिर भी आप कह देते नहीं मैं थक गया हूँ। ऐसे ही आप अपने खाने में भी वो जरूर परहेज रखो कि जैसे आपके अलार्म आए आपको कि मैं फुल हो गया हूँ, तो
stop eating at that time. तो ऐसी आप अपनी हैबिट्स बनाएंगे तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकोगे। नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अनु जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Hold on, I'm just trying to get to the Yeah. next slide. ओके, Okay, Hania is Yeah. working on the slides. Hania, can Okay. you go Yeah, to next okay. slide? Okay, yes, now I can. Sorry about that. Yes. I'm It's actually okay. learning how to share screen myself. Okay, can you click on more, like more bullet points? Are they coming? Yeah, yeah. Yes, now they're coming. हाँ, देखिए इसमें जो सबसे बड़े बीच में जो बात लाइन लिखी है, प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग मील्स विल मेक यू मोर हैव ए एंजॉयबल फीलिंग। अगर हम खाना खाने से पहले या बनाने से पहले आज पहले सोच लें कि आज मैंने क्या खाना है, ऐसा बनाना है, या तो उसका जो है ना आपके टेस्ट बड जो है, टेस्ट बड से वो इस तरह का सलाइवा निकलना शुरू होगा उस खाने से पहले। सो क्योंकि आधे से ज्यादा जो खाना है ना हमारा, जब हम खाते हैं चबाते हैं वहीं पर ही हजम हो जाना चाहिए, और वो वहां पे हजम हो जाएगा। खासकर जो है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे खाते खाते ही जो है वो हजम हो जाते हैं, उनकी जो डाइजेशन है वो अंदर जाके पूरी तरह से वो नहीं हो पाती, लेकिन वो जब हम खाते हैं तो उसी वक्त होती है। तो इसलिए जो है आप खाने से पहले अपना जो थोड़ा सा मन बनाएं कि मैंने आज ये खाना है या इस तरह का खाना है, तो आपको खाने में वो मजा भी आएगा और एक सेटिस्फेक्शन होगी, और साइंटिफिकली जैसे मैंने आपको बताया तो वो आपका खाना जो है उसका डाइजेशन होने में अपने आप जो है एक मदद मिलेगी। दैट विल बी ए, जैसे कहते हैं ना कि भाई बोनस आपके डाइजेशन में वो होगा। और शेयरिंग योर फूड विद अदर्स बिल्कुल फन है, जैसे कि घर में तो हम सब इकट्ठे खाते हैं जैसे भी होता है, शेयर वाली बात नहीं होती, लेकिन कभी जब हम बाहर हैं जैसे कोई काम पे है तो वहां पे हम अपने लंच रूम में खाना खा रहे हैं तो एक दूसरे को शेयर करके खाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, दूसरे को भी अच्छा लगता है कि भाई हाँ भाई मेरे को पूछा है या ऐसा अच्छा लगा है, अभी उसने आपके खाने की तारीफ कर दी, आपने उसके खाने की तारीफ की, तो एक अच्छा जो है आदान प्रदान जो है विचारों का वो होता है। और जो खाना जब जिसने बनाया उस घर पे जाके जब बोलेंगे कि भाई खाना बड़ा अच्छा आपका था, मेरे फ्रेंड ने बड़ा पसंद किया, तो बनाने वाले का मन भी और खुश होगा। और खाना तो वैसे भी कहते हैं खाना में तो खुशी होनी चाहिए, खुश होकर खाना खाओगे तो अमृत है, और अगर आपने गुस्से में खाना खाया तो वो आपके लिए जहर है। Yeah. Sorry, that was gonna go to the next slide after this slide, so I had to get it back somehow. Yeah, Sorry कोई about बात that. नहीं। वैरायटी ऑफ फूड जो है, वैरायटी एवरी डे वी शुड चेंज सम अदर पे आना चाहिए। देखिए क्योंकि जो हमारे टेस्ट बर्ड है ना, कहते हैं कि इसमें 5000 टेस्ट बर्ड है हमारे, तो दैट मीन कि 5000 तरह का जो खाना है अलग तरह से हमारे खाने के लिए। और मेरा नहीं ख्याल है कि हम उसमें से 50,000 की 500 प्रकार का भी खाना जो 500 प्रकार के भी जो है अपने टेस्ट बर्ड को हम एक्टिवेट करते होंगे। मोस्टली जो है आजकल ऐसा रिवाज एक पड़ गया हुआ है कि जो आपको खाना पसंद है मोस्टली आप यही खाते हैं। खासकर मैंने यहाँ देखा है नॉर्थ अमेरिका में जो टाको बेल खाते हैं तो उनको वो टाको बेल ही अच्छा लगता है, जो मैकडोनल्ड जाते हैं मैकडोनल्ड जाते हैं, तो यहाँ पर जो भी है अपने जो रेस्टोरेंट आपको पसंद है मोस्टली आप उसी में जाना पसंद करते हो या उसका खाना अच्छा है। एक लिमिट कर लेते हैं अपने आप को, हम बांध देते हैं तो एक I have a सर्कल में, comment to add in this. You know, तो I हमें see about उस सर्कल में अपने आप को नहीं बांधना चाहिए। अपने चारों ओर जो है लाइन मत लगाओ कि वैसा हर तरह का खाना खाने की कोशिश करो, तरह तरह का खाना खाओ, मौसमी खाना खाओ, पर हर रोज जो है खाना जो है चेंज करो। खासकर मैंने देखा कि हमारे पंजाबियों में तो होता है कि आज माँ की दाल है तो कल कुछ छोले होंगे, तो या सरसों का साग होगा या शलगम बनेंगे। लेकिन हमारे इंडिया में भी जो है खासकर नॉर्थ में चले जाओ तो साउथ में नॉर्थ वालों का तो खाना बड़ा टिपिकल चेंज होता रहता है।
तो वहाँ पर तो उनके जो है वही इडली सांभर डोसा बड़ा ये ज़्यादातर चलते हैं। तो वो उस प्रकार का जो खाना है वो भी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सेहतमंद निकलेगा। नॉर्थ में क्यों ज़्यादा हम सेहतमंद हैं, लंबे चौड़े ऊंचे जब गबरू जवान होते हैं, क्योंकि डिफरेंटली हम खाते पीते हैं। तो हर रोज जो है अपने खाने में कुछ वैरायटी लाओ, नया कुछ लाओ। हाँ, और जो आज का अभी समाज चल रहा है हमारा, देखिए आज से 50-60 साल पहले खाने का तरीका कुछ और था, क्योंकि उसमें फिजिकल वर्क बहुत होता था। आज हमारा फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया। जहाँ तक भी हो रहा, हर एक मोस्टली जो है, हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं कनाडा में, तो यहाँ पर तो हमारे को इतनी सुविधाएं हैं, इतनी सुविधाएं। अब आजकल ये कोविड ने और सुविधाएं दे दी, ऑनलाइन सारी शॉपिंग हो जाती है, घर पे ही आ गया आपका सब चीज, शॉपिंग करने जाना नहीं पड़ रहा। कम से कम पहले जाते थे आप, जो बिग स्टोर हैं, सुपरमार्केट में आप जाते हो तो कम से कम जो है आप वहाँ पर 1,500-2,000 कदम तो चलते हो, देखते हो, खाना लाते हो। लेकिन वो जो है एक्सरसाइज भी आप कह लो, जब तक हमारे शरीर में एक्सरसाइज नहीं होगी वो नहीं। तो लेकिन इसलिए जो है आपको अपने खाने में ज़्यादातर चीज़ें क्या करनी है, देखो कार्बोहाइड्रेट तो है उस कम करते जाओ, वेजिटेबल्स जिसमें कि आपको विटामिन्स मिलेगी, ताकत मिलेगी, मिनरल्स मिलेंगे जो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा जरूरी है। इसलिए तो जो हमारे पूर्वज थे, हम खासकर जो है सनातन धर्म में व्रत का बड़ा है, फास्टिंग। फास्टिंग वैसे हर कोई करते हैं, हर धर्म में आती है फास्टिंग। तो वो जो फास्टिंग में है तो वहां पर सीधा जो है प्रोटीन्स को एकदम से निकाल दिया जाता है कि ये नहीं खानी, क्योंकि प्रोटीन में जो है वो जो है नाइट्रोजन को सारी चीजें पैदा करने वाली बॉडी में आती है उससे। तो जो फ्रूट्स वगैरह है उसमें यही कहा गया कि आप फ्रूट खाओ, दूध वगैरह पियो, और फल खाओ, सब्जियां खाओ। फल सब्जियां खाने से हमारे अंदर जो है एक ऐसी ऊर्जा आती है, क्योंकि हमारे देखिए हमारा जो बॉडी है उसमें हर तरह के मिनरल्स हैं और विटामिन हैं, जिनकी वजह से हम तंदुरुस्त रहते हैं। और ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो विटामिन हैं उसके बगैर हम प्रॉपरली अपने आप को सेहतमंद नहीं रख सकते, चाहे वो विटामिन डी हो, चाहे विटामिन ई हो, चाहे विटामिन ए हो। सो दोज विटामिन आर वेरी मच नेसेसरी, इंपॉर्टेंट है। दे आर लाइक ए सुई धागा। जैसे कपड़ा कोई बनाना है हमने, तो उसके लिए सुई भी चाहिए, धागा भी चाहिए, तो उसके बिना वो नहीं बन सकता। तो ये जो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, ये हमारे शरीर के सुई धागे की तरह काम करते हैं। हमारे एक एक अंग जो है, हमारे मसल जो हैं, और हमारी हड्डियां जो हैं, और हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन है, उनको हेल्दी रखते हैं, उसको जोड़ के रखते हैं, नहीं तो बिखर जाते हैं। अभी किसी भी विटामिन की कमी जैसी हो जाती है, तो जब विटामिन ए की कमी हुई तो आपके शरीर के ऊपर जो है ड्राइनेस आ जाएगी, है, क्योंकि विटामिन ए जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ऑयल को फिट रखता है, क्योंकि वो ऑयल सॉल्युबल है। तो इसीलिए जो है उन चीज़ों को खाना बहुत जरूरी है। इसके लिए और बात करेंगे। अभी दूसरी ये स्लाइड आ गई, होल ग्रेन फूड, जिस खाने में पूरी तरह से हर चीज़ है, उसमें से निकालना नहीं। अब हम कितनी बार बात करते थे नेचुरल नेचुरल नेचुरल, हम तो नेचुरल बातें जरूर करते हैं, लेकिन नेचर के साथ रह के खाने के लिए या नेचर के साथ हम उठना बैठना वो नहीं करते। नेचर ने तो बनाई 24 घंटे में 3 अलग अलग पहर बनाए हैं, लेकिन हम क्या उन पहरों के हिसाब से चलते हैं, करते हैं? रात सोने के लिए बनाई, हम सोते ही नहीं। हमारा पैटर्न ही सारा चेंज हो गया। तो ऐसे ही खाने के लिए उसमें से जो है, आप गेहूं अगर लो तो क्या उसको छान लिया, उसका बूरा निकाल दिया है, उसमें से मैदा निकाल दिया, अलग कर दिया, उसकी सूजी अलग कर दी। तो कोई सूजी का हलवा खा रहा है, कोई मैदे के जो है छोले भटूरे बना के खा रहे हो, या मठियाँ बना रहे हो मैदे की, तो वो आप खा रहे हो। अगर आप वही जो चीज़ है, आप अभी आजकल तो मेरे ख्याल सब लोगों को हो गया है चीज़ों का, तो अगर आप जैसे पूरी वगैरह बनाते हो, जो रोटी बनाते हो पूरे फुल ग्रेन के बनाते हो, तो वो अच्छी लगती है, अच्छी बनती है। जस्ट वी हैव टू स्टार्ट ओवर। पुराने जमाने हमने देखा है कि हम गाँव में जब थे तो आटे का जो ना बूरा वो पशुओं को खिलाते, तो उसका तो ये तो पशुओं का खाना। अरे पशु को तो आप खिला रहे हो तो उसका तो आपको दूध मिल रहा है। आप सोचो कि जितने भी दूध देने वाले हैं, जिनका हम दूध पीते हैं, जिनसे हमें
प्रोटीन भी हम लेते हैं या जिनसे हम फैट वगैरह भी लेते हैं, वो सारे के सारे जो जानवर हैं वो तो शाकाहारी हैं, वो तो घास फूस खाते हैं और देखो कितना हमें अच्छा दूध देते हैं। आजकल हमारे आम जो है एक बात चलती है कि भाई प्रोटीन के बिना कैसे मसल बनेंगे। अरे उनके कैसे मसल बने हुए हैं, अब ये सोचो। और बहुत से पहलवान ऐसे भी हैं जो कि अपना जो खाना है उनका वो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन में ऐसा नहीं कि वेज में जो है आपको प्रोटीन नहीं मिलती, बहुत सी प्रोटीन मिलती है वेज में। आपकी बॉडी ने अलग अलग उसको जनरेट भी करना है उसमें से लेकर हर चीज को। इससे पहले वाली स्लाइड आप लगाना प्लीज, इसमें जो थी। हाँ, तो जब हम फैट की बात करते हैं, ऑयल की बात करते हैं या तेल वगैरह की बात करते हैं, तो हमें ऐसी जगह से तेल लेने चाहिए अपने वो जो कि नेचुरल तरीके से हमें मिलते हैं। और वो जो जितना भी हो सके हमें वेजी जो है ड्राई फ्रूट हैं और दूसरे फ्रूट तरह के हैं उनमें से ले, और दूसरा वहां से नहीं अगर ले सकते तो जो है आप अंडे वगैरह से भी आपको मिलता है। और खासकर जो फिश है, फिश ऑयल जो है इसकी जो वेजी नॉन वेज है वो तो इसको खाते ही हैं, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो पसंद नहीं करते। लेकिन फिश जो है एक ऐसी चीज है, ऐसा भोजन है जो कुदरत ने हमारे लिए बनाया है या नहीं बनाया ये तो अपने अपनी सोच के हिसाब से है। लेकिन फिश खाने से कोई नुकसान नहीं आपकी सेहत में, ये जो है। लेकिन वही आती है कि फिश जो है वो कहाँ की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, और जो स्वच्छ पानी में जो फिश मिलती है। और फिश का जो जैसे आप बहुत लोगों को मालूम होगा कि फिश ऑयल जो 7 सी ऑयल है उसमें इतनी ताकत रहती है कि वो सर्दियों में या जिन लोगों को अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम रहती है या जिनको जल्दी कोल्ड पकड़ लेते हैं उनके लिए फिश ऑयल आमतौर पर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और ये ठंड से भी बचाता है आपको, हार्ट को भी आपके बचाता है। जो लोग खासकर मेडिटेरियन जिनको हम बोलते हैं उनमें ये फिश आती है और वो उन लोगों को हार्ट अटैक बहुत कम होता है। तो ये जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई अलग से, ये जो इस तरह के अगर हम खाने खाते हैं तो आपको जो है यहाँ से आपको फैट लेना चाहिए जो कि आपकी बॉडी के अंदर जमेगा नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। है ना, प्लीज चेंज द स्लाइड। I was trying to change the slides according to the time that you're speaking. क्या बढ़िया तरीके से पर्दा हिलता है कि नया सीन आ रहा है, याद आ जाती है ड्रामे की। ड्रामे में एक सीन खत्म होता है तो पर्दा आता है, फिर दूसरा पर्दा आ जाता है, उतर जाता है, तो हमें नया सीन मिलता है। सो आजकल जैसे है कि पहले तो ना अभी पार्टीज और रेस्टोरेंट वगैरह में का बहुत ज्यादा रिवाज हो गया है खाना खाने। बहुत लोगों के पे आप खाना खाने बाहर नहीं जाते, अब घर पे हमेशा खाना खाते हो। हम तो हफ्ते में एक बार जब तक बाहर ना खाना खाने जाएं मजा ही नहीं आता। सो इस तरह के आजकल जो है पीछे। सो चूज ए हेल्दियर मेन्यू व्हेन यू आर आउटडोर। जब आप खाना बाहर खाने जा रहे हो तो वहां पर ये देखो कि आपका जो मेन्यू आप जब चूज करते हो तो ये देखो कि उसमें हेल्दियर क्या चीज है, क्या हेल्दी खाना है। और उसके लिए जैसे आपको पहले बताया कि उसमें आपको हेल्दी ये देखना है कि आपको सैलड वगैरह और अच्छी चीजें जो है वो उसमें हो। और जो प्रोसेस फूड है हो सके तो उसे लिमिटेड क्वांटिटी में आप लें। अगर आपने ज़्यादा वो खाई, जैसे हमारे क्या, अगर हम सब यहाँ पे हम सारे पंजाबी बैठे हुए हैं तो हम बाहर जाते हैं, खासकर ये होता है कि भाई छोले भटूरे खासकर जो हमारे होते हैं या कहीं पर जैसे पराठे वगैरह हो गए, मक्के की रोटी, साग भी आजकल रेस्टोरेंट में खूब मिलता है। तो उसमें ये देखें कि भाई आप जो है जहाँ तक भी चुन सकें अच्छा खाना चुनें। और अगर वो ऐसा खाया गया है तो थोड़ा नेक्स्ट डे थोड़ा सा जो है आप खाने में डिले कर लो, एक स्किप कर लो मील जैसे होता है। और जिन लोगों को शुगर की तकलीफ है या जिनका हाई ब्लड प्रेशर वगैरह है तो उन्हें जो है देखना चाहिए कि भाई सोडियम जो है नमक वो उसमें कम हो। और शुगर वालों को अपनी शुगर का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें शुगर ना हो, या जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा शुगर बन सकती है वैसे ना करें।
मैं एक नई बहुत रिसर्च आई है खासकर शुगर वालों के लिए आपको बताऊं कि वो अगर जो भी कार्बोहाइड्रेट टाइप खाना खाते हैं उससे पहले, जैसे कि भाई चावल वगैरह हैं, खासकर चावल ही होते हैं जिसमें ज़्यादा होता है, तो उससे पहले अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें कि फैट होता है, वो फैटी चीज़ें थोड़ा सा अगर फैट खा लेंगे तो उसके बाद में अगर चावल खाते हैं या पूरे खाने के बाद में, तो उनको जो है डायबिटीज़ वालों का जो शुगर लेवल है वो इतनी जल्दी से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जैसे अभी मैंने देखा है कि मैंने यहाँ पे खास कर एक एक्सपेरिमेंट किया है, जो ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा में काफ़ी आपने देखा होगा कि उसमें ज़्यादातर जो पिज़्ज़ा मैदे का होता है, उसमें काफ़ी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन पिज़्ज़ा में एक चीज़ और होती है जो कि उसमें ऊपर जो आप टॉपिंग वगैरह करवाते हो, लेकिन टॉपिंग के साथ साथ उसमें जो चीज़ होता है वो भी जो है, जब आप ये खाते हो तो आप जिनको भी डायबिटीज़ है वो नोटिस कर ले बेशक कि आपने दूसरा खाना खाते हो और जब ये खाते हो पिज़्ज़ा, तो आपका शुगर लेवल उतनी जल्दी से शूट नहीं करता जितनी जल्दी से आपका नॉर्मल जो आपने खाना खाया था उससे शूट करता है, क्योंकि इसमें जो है वो फैट है, इसमें जो प्रोसेस टाइप जो चीज़ डाला हुआ है दैट कंट्रोल दैट, क्योंकि तब आपको खाने में हजम होने में टाइम लगता है। इसलिए जो डायबिटीज़ वाले उनको कहते हैं ना कि भाई आप सुबह जैसे अंडा खा लो और केला खा लो, दही खाओ, क्योंकि वो जो मटेरियल है आपका फूड का, इट टेक्स मोर टाइम टू गेट डाइजेस्टेड। जब वो डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको जल्दी भूख भी आपकी जल्दी मिट जाती है उससे, तो आपने कम खाना खाया, तो जल्दी जल्दी नहीं आप खा रहे हैं, उसमें हजम होने में 5-6 घंटे लगे, तो उसमें जो है शुगर लेवल धीरे धीरे अपने आप कम रहता है, वो ज़्यादातर एकदम से स्पाइक नहीं हो पाता। लेकिन जो खाना एकदम से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिसमें से शुगर एकदम से निकल आती है, इसीलिए कहते हैं डायरेक्ट जो शुगर हम खाते हैं जब मिठाई खाते हैं उसमें से खाना एकदम से बाहर आ, उसमें जो जो शुगर है वो बाहर आ गई, तो आपका जो है शुगर लेवल एकदम स्पाइक कर जाता है, ऊपर बढ़ जाता है। तो इसलिए अपने खाने के ऊपर अपने लेवल जो है वो जरूर देखो कि आपके ये खाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट क्या पड़े हैं, किस तरह का खाना खाना है। अब दूसरी बात आ गई कि डिसऑर्डर क्या होता है। डिसऑर्डर में यही डिसऑर्डर होता है कि टाइम पे खाना नहीं खाना, टाइम पर भूख नहीं लगनी, खासकर हम जो है बच्चों में ज़्यादातर डिसऑर्डर पाया जाता है, और दूसरा डिसऑर्डर हमें मिलता है बड़ों में, जो सीनियर्स लोग हैं उनका भी खाने का टाइम इधर उधर हो जाता है। क्यों? कभी भी जो है निबलिंग जो है ना फूड की, उसकी आदत नहीं डालनी चाहिए। आपने थोड़ा सा भी निबल कर दिया तो, क्योंकि आफ्टर 20 मिनट्स जो है आपने जो खाना खाया वो खाते खाते जो आपके मैसेज जो है दिमाग को मैसेज पहुंचना शुरू हो जाता है आफ्टर 20-30 मिनट कि मुझे खाना मिल चुका है, अब मेरी भूख नहीं रही। तो जब वो भूख नहीं रहती, वो आप खाना खाते हो तो आपको तकलीफ होती है। ऐसे छोटे बच्चों में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को भूख लगी होती है और खाना तैयार नहीं है, या आप उसको, तो आप क्या करते हो, बच्चे को कोई चॉकलेट दे दी या बिस्किट दे दिया, कुछ चिप्स दे दिए, कुछ भी ऐसा दे दिया, तो बच्चे की भूख उससे मर जाती है। तो उसका जो खाने का जो टाइम है वो डिसऑर्डर पर्टिकुलरली वो पैदा हो जाता है। इसीलिए जो बच्चों में भूख कम हो जाती है, तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो कि खाने का जो टाइम है एटलीस्ट जो है एक खाने के दूसरे खाने में 4 घंटे से ऊपर का आप जरूर पर जरूर जो है वो आप डिफरेंस रखो। और जिनको खासकर कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज है उन्हें 6 घंटे से पहले कुछ नहीं खाना चाहिए। तो आप फिर ऐसे करेंगे, और इन लोगों को खाने में जहां तक भी अपना हो सके वही पुरानी पद्धति अगर हम लाएं, तो एक चीज आपने एक दाल बनाई है तो पहले आप दाल के साथ खाना खा लो, सब्जी को वैसे खा लेना सूखी को, या सब्जी के साथ खाना खा लो, दाल की कटोरी वैसे बाद में खा लो, एक एक खाना खाओ। अभी ऐसे जैसे मैंने लास्ट टाइम एक बार बताया, सैलड खाने लगे तो आपके सैलड में जो जो चीजें हैं अलग अलग रखो और अलग अलग उस चीज को खा लो। आप खीरा खा रहे हो, कुकम्बर जो है, पहले कुकम्बर को खत्म कर लो, उसके बाद में आप सैलड ले लो, उसके बाद में आपने मूली रखी हुई तो मूली खा लो, या टमाटर जो है अलग अलग करके खाओगे तो आपके जो टेस्ट बर्ड है उसमें से और बॉडी के अंदर जो एंजाइम है उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, वो टमाटर को हजम करने वाला ही उसमें से एंजाइम निकालता जाएगा, कुकम्बर को हजम करने वाला एंजाइम निकालता जाएगा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट निकालने वाला करता जाएगा। सो अगर आप मांसाहारी हो तो आप पहले जो है जो भी आपको मीट की आइटम है, मीट की आइटम अलग से खा लो,
इसलिए आपने देखा होगा कि खासकर यूरोपियन खानों में जो है बहुत कम होती है रोटी या बन जो अलग से रखा होता है, बाकी सारी चीजें अलग अलग प्लेट भर लेते हैं। पहले अलग से फिश खा लिया आपने या चिकन खा लिया, उसके बाद में कुछ और लेते हैं। तो वो जो है इस तरह से जब हम खाना खाएंगे एक चीज को अलग अलग करके, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू। लेकिन हमें उस चीज की आदत नहीं रही है, हम मिक्स करके, जिसको होता है ना पंजाबी में जो जानते हैं जैसे गाँव में गतावा कर लेने, वो जो है गतावा करके खाना, वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की ये मेरी बातचीत कुछ अच्छी लगी होगी। जिनको नहीं अच्छी लगी तो वो बताएं कि क्यों नहीं अच्छी लगी, ताकि मैं उसको और अच्छी तरह से आपको परोस सकूं। जब है ना भाई इसमें नमक कम है, बीवी को बताओगे तो भी खाना अच्छा नहीं बना तो है। इसलिए जो बातें अच्छी नहीं लगी हैं वो भी बताएं, और जो अच्छी लगी हैं तो वो आप उसे अपनाएं। और कोई कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे वो अपना सवाल पूछें। I would say amazing presentation. I learned a lot. One thing I have to say is what I personally do when I go to restaurants, I always order wraps or sandwiches because they have all the vegetables in it, all the portioning. So I feel that's always a healthier option. To go in anywhere, eat a wrap or eat a sandwich. It's fulfilling and it's healthy. That's what I always do. यू राइट, क्योंकि हमें हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम रैप सबको इकट्ठा कर लो, खाते जाओ। फास्ट True, फूड, because फास्ट if फूड you की like, आइटम हो गई। यस, true, because if you order like, salad, kebab and rice on one side, it'll take you forever to eat. If you just add, if you order wrap, it's a lot easier. You feel healthy. देखिए वो That is ठीक है what I आपके वो उस तरह से वो टेक्निकली आपने सब कुछ डाला हेल्दी है, लेकिन आपकी आंखों के ने नहीं देखा। True. जब थाली लगती है तो इसलिए उसमें अलग अलग व्यंजन रखे जाते हैं, तो आप देखते हो आपकी आंखें खुश होती हैं, आपका पूरा। देखिए जब ये हमारा जो शरीर है ना, ये कहते हैं कि ये 36 करोड़ जो है सेल से बना है। तो वो एक, अगर आप सेल को समझते हो तो एक ही जो सेल है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया करता है, उसमें पूरे एक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी करती है। I didn't know that. That's very interesting. Every cell has a digestion system, it has a nervous system, it has a reproduction system, it has a excretory system. So वो जो सारा एक सेल है उसी से हमारी जो बॉडी है वो तैयार हुई है। तो ये बहुत से सारे सेल इकट्ठे होकर तैयार हुई है। तो जब हम खुश भी होते हैं तो हमारे एक जो है ना आंखें खुश, मन खुश, सारा कुछ कैसे खुश हो जाता है, क्योंकि एवरी सेल जो है तो सारे के सारे खुश हो जाते हैं। इट इज लाइक जस्ट लाइक आप ये समझो कि एक घर है, उसमें कुटुंब है, उसमें मामा है, ताया है, चाचा है। जब कोई खुशी आती है तो सारे के सारे घर वाले खुश होते हैं और खुशी से नाच उठते हैं। तो ऐसे ही जब फूड आपका बॉडी देखती है तो सारे के सारे जो है आपके अंग नाच उठते हैं। एक क्वेश्चन तो इसलिए खाना को देखना, आंखों को दिखा के खाना, इसलिए पहले मैंने कहा पहले आप उसको सोचो, क्रिएशन करो, क्रिएट करने के बाद में दिमागी पहले क्रिएट, जैसे कहते हैं कि एक घूम रेखा बनाते हैं, जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाता है तो पहले दिमाग में सोचता है, फिर पेंसिल लेता है, फिर कल उससे जो है पेपर लेता है, उसके ऊपर ड्रॉ करता है, फिर उसमें कलर डालता है। ऐसे ही खाना बनाने के लिए पहले आपके दिमाग में आएगा कि मुझे आज मूली का पराठा बनाना है, या आपको घिए की सब्जी बनानी है, गजेला बनाना है, तो पहले वो दिमाग में आया। फिर आप उसको लेके आए, उसको आपने छीला, उसको काटा, उसे तैयार किया। फिर उसके बाद में जब तैयार हो रहा है तो आप बार बार देख रहे हैं, आपकी आंखें देखती हैं, खुश होती है, अरे बन रहा है, अरे अच्छा हो गया। सो दैट वो जो खुशी है ना आपको, जहां तक मैं कोई कहूंगा कि जब भी खाना बनता है सबको, मैं जितने भी घर जो भी है, कोशिश करो कि या तो खुद बनाओ या जब बन रहा है उसके पास जाके देखो, प्रोत्साहन दो, बड़ा अच्छा लगेगा, बनाने वाला को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा जब आपको परोसा जाएगा, अरे वाह क्या बन गया। इसीलिए जो है ना हमारे घरों में रिवाज है कि बेटे को या हस्बैंड को या डैडी को जब भी तैयार करते हैं, जो भी खाना तैयार करता है, तो वो थोड़ा सा कहता है आप जरा चख के बताएंगे कि कैसा बना है, वो एक कम्प्लीमेंट लेना होता है। जी आप भी कुछ जी नमस्ते, मेरा क्वेश्चन है कि मुझे लास्ट 2 वीक से ना भूख नहीं लग रही बिल्कुल, एक फुल्का सारे दिन में चलता है, बिल्कुल दिल नहीं करता खाने का, पेट भरा ही भरा। ये क्यों है ऐसे? एक तो एक्सरसाइज मेरी बिल्कुल बंद है, कुछ नहीं होती, ये सबसे बड़ा रीजन लगता है मुझे। बिल्कुल सही बात आपने कही। और दूसरा ये है कि अभी अभी आप 2 हफ्ते से आप ये कह रहे हैं कि भूख लगी, उससे 3 हफ्ते हो चुके हैं आपके, मेरे ख्याल 4 हफ्ते, जब आपको एक मेंटल ट्रॉमा मिला, आपकी सिस्टर का आपका बिछोड़ा हुआ, वो भूलता ही नहीं है मुझे, वो नहीं भूल रहा आपको। तो जब
माइंड में ऐसी जो चीजें होंगी तो वो भूख नहीं लगने देगी, दिल ही नहीं ना करता फिर खाने को। नहीं पता नहीं, वो शौक कुछ तो ज्यादा ही लगा आपको मुझे। उस शौक से थोड़ा सा अपने आप को निकालना होगा। देखिए एक फुल्का भी ना आप मैं जबरदस्ती खा लेती हूँ, आपने सब्जी खा लो बिल्कुल, बस। आपने मेरे से दुनिया ज्यादा देखी है, आपको मैं क्या समझाऊं, वही समझाने, आपको समझाने वाली तो बात यही होगी कि सूरज को दिया दिखाना की भी रोशनी ऐसी होती है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आप सूरज हैं। सो नहीं, ये आप दिमाग में थोड़ा सा ये रखिए, जैसे एक मैं आपको छोटा सा एक ना, क्योंकि आप मीना जी को पता है, पिताजी को, ये जो गाने वाले हैं ना, उनके दिमाग में गाने बड़े घुसे रहते हैं। नहीं हैं? गाने तो मैं भी बहुत गाती रहती आप भी गाते, देखिए वो गाना है ना, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत हूँ, गाता गाता जाए। जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा, बस्ती बस्ती दिल, 2 दिन की ये भूल जाते उसमें हैं। वो मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, ऐसे वो बातें करते हैं, तो उसमें एक लाइन आती है कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल करनी है चलने की तैयारी हो, बस्ती बस्ती। सो ये सोचो कि आज वो गए हैं तो कल को मैंने भी जाना है, इस ये तो दुनिया में जो पक्का, आया है मैं उसने वो जाना ही बहुत जाना शोर है, मचाती लेकिन हूँ तो। जब तक हम हैं इस जीवन का आनंद लेना है, इस जीवन का आनंद लेना है हमें। स्वधर्म अपना अपनाओ। आपका स्वधर्म ये है कि अपने आप को तंदुरुस्त रखना है। हम अपने आप को तंदुरुस्त रखेंगे तो हमारे बच्चे भी, हमारे जो है वो भी तंदुरुस्त रहेंगे, उनको कोई तकलीफ ना हो। देखिए हम ये चाहते हैं ना उन्हें कोई तकलीफ ना हो। आप, अगर मुझे कोई तकलीफ है तो मेरा बेटा, उसके लिए मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है, मेरे और जो भी मेरे नजदीकी हैं भाई बंधु, उनको भी वो तकलीफ होगी। तो मेरा अपना सबसे बड़ा धर्म ये बनता है कि मैं अपने आप को स्वस्थ रखूं, और वो स्वस्थ रखने के लिए खाना जो है वो बहुत जरूरी है। सिर्फ मैं वेजिटेबल ले लेती हूँ, दाल, जी रोटी तो खाने को ना बिल्कुल हाँ। मन नहीं करता। और मैं दूसरा आपको बताऊं, ये जो आपकी अगर दिमाग में से वो चीज नहीं जा रही, तो एक होम्योपैथी में मेडिसिन है इग्नेशिया। इग्नेशिया जो है, ये अपनों से जुदा होने का जो दर्द है, गम है जो दिमाग में बैठता है, उसको सहने की ताकत देती है, उसे भूलने की। कहाँ से भूलना नहीं मिलेगी है, आपको? उसको सहने की ताकत देती है। दूसरा यही जो ताकत है, ये केले में भी है। केला भी आपको डिप्रेशन नहीं आने देता। केला आप में एक आध थोड़ा सा केला खा लो, वो भी आपको मदद करेगा। और केला आप काट के हल्का सा उस पर नमक या वो लगा लो, थोड़ा सा नींबू, तो दैट विल वेरी हेल्पफुल टू यू। बाकी तो आंवला है, आंवला भी वो जो है खाती हूँ मैं, जनरली में वो भूख खाती लगाता हूँ। है। थोड़ा सा जो अदरक है, वो भी अगर आप खाने से पहले खाएंगे तो आपको भूख लगा देगा वो भी। पता नहीं, मैं खुद ही हैरान हूँ, बिल्कुल सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। नहीं, अपने आप को थोड़ा आप माहौल जो है ना, अपने दिमाग का माहौल वो चेंज करने की कोशिश अब करो, पेट भरा ही भरा भरा भरा, बस बिल्कुल पेट इसीलिए, पे कैसे और कोई खाए। उसमें कारण जी। इग्नेशिया। अब हमारे पास तो कोई इधर डॉक्टर भी नहीं है, कोई नहीं है। हाँ जी। मतलब होम्योपैथिक का कोई भी यहाँ और भी कुछ नहीं, हमारा एरिया ही नहीं है, कोई है ही नहीं स्टोर इधर। आप कहाँ रहते हो? अभी हमने खरीदा भी साल भी नहीं हुआ, ये नॉर्थ ऑफ मैगलोविन, ये मेफील्ड के साथ पास ही लग जाता है, बिल्कुल नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन से कितनी दूर है? कहाँ से? ब्रैम्पटन ब्रैम्पटन में ही है। ब्रैम्पटन नहीं है, मेफील्ड। मेफील्ड और मैक्लॉगलिन की इंटरसेक्शन के उस पर है मेरे नहीं, ख्याल। आप आजकल तो होम्योपैथी दवाइयाँ जो है ना वो शॉपर ड्रग में भी मिलती हैं। वो आप भी यहाँ बड़ी दूर है, शॉपर ड्रग्स में बहुत दूर है यहाँ से, है ही नहीं, कोई भी स्टोर नहीं है हमारे आसपास। नया एरिया, नए नए मकान बन रहे हैं रोज रोज। नहीं, लेकिन एक लगाना पड़ेगा पास में, जो जो भी नियरेस्ट शॉपर्स है, नहीं तो ऑनलाइन बच्चे ऑर्डर कर सकते हैं, ये तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगी मेरे ख्याल से दवाई। यस, नहीं मैं ऑनलाइन मिल जाऊँ, जाती है, या टोरंटो पता नहीं दिल ही नहीं करता ना सैर करने को। आगे मैं काफी वॉकिंग के लिए मॉर्निंग इवनिंग जाती थी, मैं निकलती नहीं, पता नहीं क्यों नहीं निकल, दिल ही नहीं करता है कुछ भी करने। मैं इसमें एक बात कहूँ, इफ यू डोंट माइंड, नहीं, मेरे लास्ट ईयर मॉम और डैड की डेथ हुई है विद इन 3 days। माय गॉड। ओ माय गॉड। 26 अक्टूबर को मेरी मॉम की डेथ हुई है शाम को,
और 29 को मेरे डैड की डेथ हो गई विद इन 3 मेरे यहाँ days। 21 को हुई है उसकी सिस्टर। और मेरी सिस्टर की डेथ व्हेन शी वाज 16, आई वाज 22 उस टाइम हो गई थी। और मेरा एक ही भाई बचा था, उसकी डेथ 8 साल पहले हुई है। तो आज की डेट में मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों के अलावा कोई नहीं है मेरी लाइफ में। तो आई Very वाज sad. डेवास्टेटेड। मैं अभी आपकी बड़ी देर से ये सुन रही थी। तो मैंने इश्क कौन वालों ने ना एक गीता का कोर्स शुरू किया हुआ है, फ्री कोर्स है, 18 दिन का कोर्स है। वो डेली एक चैप्टर पे बात करते हैं, 1 घंटे के, मतलब 45 मिनट टू 50 मिनट्स। उसके बाद वो आपके क्वेश्चन आंसर लेते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। मैंने वो किया, उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। आप ये जो अगर तो आपका मतलब डिप्रेशन की वजह से या सैडनेस की वजह से है ना, तो थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान लगाइए। और थोड़ा ये, अगर मैं आपको लिंक पूजा- भेज दूंगी इसका, नहीं अगर मैं आपने करना हो। पाठ सुबह शाम करती हूँ, पाठ कर रही हाँ, हूँ, वैसे लिया बस गुड़ का, बस। पर ध्यान तो आप मेरा पता गीता नहीं कहाँ पढ़ो, देखो गीता पढ़ो, गीता में बार बार यही चीजें आती हैं। तो मतलब इसको बार बार आपने अपने आप को याद करवाना है और कुछ नहीं। क्योंकि मतलब मैंने उस टाइम, मेरे को तो अटैक भी आ गया था मम्मी की डेथ के बाद। उसके बाद मैं इसी चीज से निकाला मैंने अपने आप को, कैसे, लाइक यू कैन इमेजिन। सो इट हेल्प्स, मतलब मेरे को बहुत हेल्प हुई इससे। मेरे को मेरी किसी फ्रेंड ने भेजा था फिर दिसंबर में, और मैंने ये 18 दिन का फिर जब करा तो मेरा ध्यान थोड़ा उस तरफ लगा। उसके बाद से मैंने थोड़ा कृष्णा भक्ति की तरफ ध्यान लगाया। पहले मैं शिव जी की ज्यादा पूजा करती थी, मतलब वैसे तो हम सारे ही करते हैं, जैसे माता की भी करते हैं, नवरात्रे वगैरह ये वो सारा। बट तब से फिर मेरा ध्यान थोड़ा कृष्णा भक्ति की तरफ ज्यादा लगा, क्योंकि उससे आपको, मतलब जो बाकी हम देवताओं की पूजा करते हैं या जो भी है वो करो, लेकिन दैट इज व्हेन वी वांट समथिंग। ठीक है, कृष्णा भक्ति है कि हम भगवान में ध्यान लगा लेते हैं कि बस अब वही है सब कुछ। तो उसमें आपको बहुत ज्ञान मिलेगा और उसमें बहुत शांति भी मिलेगी। और उनका वो जो है ना, हरे रामा हरे कृष्णा वाला, आप हरे रामा हरे कृष्णा बाई जगजीत सिंह, या एक हे राम की ट्यून है बाई जगजीत सिंह, बहुत अच्छी है, बड़ी सूदिंग ट्यून्स हैं। उनको आप बैकग्राउंड में लगा के रखो, बहुत आपका दिमाग उनसे शांत होता है। वो इतनी शांति वाली वो है ना ट्यूनें, अगर आपको हेल्प करें तो आप मेरे करके मेरे देखो। मदर भी बताऊं? लास्ट ईयर एक्सपायर हुए, ऑल ऑफ सडन एक्सपायर हुए। जस्ट कुछ भी नहीं था, जस्ट वी टुक हर टू द डॉक्टर और अरे डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। शी वाज क्वाइट हेल्दी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जरा सा थोड़ा ब्रीदिंग का हुआ था तो डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। एंड वो सिस्टर्स ने वहां गलत इंजेक्शन लगा दिया, उनको पता नहीं चला कि उनको डायबिटीज बता भी दिया था, तो इंजेक्शन गलत लग गया। तो बस विद इन नो टाइम शी एक्सपायर्ड। तो मैं तो आई वॉज हेयर ओनली, तो मैं तो एकदम से, मतलब मेरे को वहां से इंडिया से फोन आया, तो एट वंस मेरी टिकट करवाई फिर बेटे ने, तो मैं यहाँ से गई। तो वो शॉक, यू वोंट बिलीव कि मैं, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट वन इन माय फैमिली। एक ब्रदर है, एल्डेस्ट ब्रदर है, एक सिस्टर है, एल्डर वन। और मैं आई वॉज मोर अटैच्ड विद माई मॉम, बीइंग सिंगल मदर, मैं सिंगल भी हूँ, तो मैं मदर के साथ हर चीज शेयर करना, एवरीथिंग टू आस्क, वो मेरे दिमाग से भी नहीं निकलता। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्लीप एट नाइट। मतलब ये दिन में तो ऐसे सोने की बात ऐसे ही अलग है, जिनको मैं भी रात ये को सो ही नहीं पाती, जिनको कुछ भी भी हो ये जाए। है, जो अपने से बिछड़ने का जो दुख है, जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है इग्निशिया 1M, इग्निशिया। 1000 की जो है, आप एक डोज लेके देखिए, आपको आधे एक घंटे के अंदर अंदर मालूम पड़ जाएगा कि आपका जो है अंदर कितना, जो भी आपकी उलझन थी कितनी दूर हो रही है। यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट क्लाउड। बट विदिन वही, हाफ एन अब आवर इनकी आपको ये इनकी दवाई जो सारी है वो आपको सुनी है, तो असर वो देगी। लगता है कि नानक दुखिया सब संसार, नहीं नहीं, वो तो फिर ठीक है, अपना लेकिन दुख वो वो बड़ा कम लगता है। वही को झेलने नहीं के लिए पता हमारे को नानक ने जो है दिमाग दिया, उसमें तंतु दिए हैं जिनको कि ऐसा उन्होंने बनाने के लिए कहा है कि ये सारी चीजें आनी है, लेकिन हमने उसको सहना है। वो जो सहन शक्ति है आपकी, उसे लॉजिकली सोचने की, तो वो आपका जो लॉजिक है वो उसमें आपको ऐसे दृढ़ता लाएगा कि ये सबके साथ होती है चीजें, कहने से नहीं, वो आपका दिमाग उसको मान लेगा। जब तक हम किसी चीज को मान नहीं ना लेते, तब तक उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। सो इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप जमा के देखिए, मैं भी यहीं पर हूँ, आप भी यहीं पर है, यू विल फाइंड अ डिफरेंस। ये आपके लिए अकेले नहीं, मेरा ख्याल है मैंने ऐसे कितने हजारों लोगों को ये दवाई दी है, क्योंकि ऐसा हर एक के साथ होता रहता है। नहीं, कोई मैं लाऊंगी, कोई नहीं ऐसी बात। आप विघ्नेशिया 1M है, किसी से आपके बेटा जो पोता है, बेटा है, बेटी है, किसी को भी आप बोलिए वो ले आए, नहीं तो आप उसको मेरा एड्रेस दो, यहाँ से आके ले जाए। जरूर ले आऊंगी, मैं यहाँ से ले तो आऊंगी, शॉर्टकट रहता है। बिल्कुल। पता बात बताऊं आपको,
हमारा घर ही गुरुद्वारा बना हुआ है। मेरे हस्बैंड सुबह 4:30 बजे से लेके 7 बजे तक हरमंदिर साहब से सारा दिन लगा रहता है, सारा दिन हरमंदिर साहब का प्रोग्राम। तो मतलब मैं नहीं टीवी देखती। नहीं, ये देखिए मैं आपको बताऊं, डोरबेल सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, ये करना बहुत अच्छा है, लेकिन वो करने के अलावा जो चीज होती है, जब तक वो आपके अंदर नहीं हो, आप उस चीज को समझ नहीं जाते। एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही समझना एक्चुअली, बहुत जरूरी उस चीज चीज की है। एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही देखिए है। हमने दो चीज, ये जैसे पढ़ाई करते हैं, ये भी दिमाग की एक पढ़ाई है। जब आपको पता चल गया 2 और 2 4 होते हैं, आप हर वक्त ही थोड़ी 2 और 2 4 करते रहोगे। आपको पता चल गया, आपको बिल्कुल आपने अपने अध्यात्म से, अपने ग्रंथों से, अपने गुरुओं से कोई चीज सीखी, तो उसे बार बार दोहराने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल उसकी महिमा गाने से नहीं होगा, उस महिमा जिसकी आप गुणगान कर रहे हो उसे अपने जीवन में अपनाने से होगा। मैं छोटी सी बात करता हूँ, सेब बहुत अच्छा है सामने, रोटी बहुत अच्छी है, तो आप क्या यही कहते हो कि रोटी बहुत अच्छी है, सेब बहुत सुंदर है, उससे तो नहीं आपके अंदर वो चला जाना। महापुरुषों ने जो हमें बताए हैं उनके गुणगान गाने से नहीं, जो उन्होंने कहा है उसके ऊपर चलने से बात होगी। बिल्कुल ट्रू। देखिए ये आज का जो अभी जो महीना शुरू हुआ है दिसंबर सारा का, शहीदों का, इस दिसंबर महीने में गुरुजी सारे ने शहीद है। कितने अवतार, जो गुरु थे उन्होंने कितने बलिदान दिए उनके बच्चों, हम उसकी महिमा गाते हैं, लेकिन वो भी देखो कि उस महापुरुष के ऊपर जिसने अपना सर्वस्व दान कर दिया, बिल्कुल उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, किस तरह से उन्होंने चीज को किया है। हम उसकी बात तो करते हैं, लेकिन वही चीज आ जाती है कि हम ये कहते हैं कि भगत सिंह हो, महात्मा गांधी पैदा हो, गुरु गोविंद सिंह पैदा हो, गुरु नानक पैदा हो, लेकिन हमारे घर में ना हो, क्योंकि हम उनकी तरह त्याग नहीं कर सकते। जब तक हमारे अंदर वही सब के बाद त्याग जो है, ये बहुत जरूरी चीज है, चाहे वो खाने का त्याग हो, चाहे वो मोह त्याग हो। अपनों का भी एक जो त्याग है हमें वो सहना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी किसी को वो दुख दर्द दे के जाना है। आप ये भी समझो ना, आपको अगर हुआ तो आपने भी तो किसी को वो दुख दर्द दे के जाना है। आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा के जा रहे हो, यही सिखाना है हमें। महापुरुषों ने यही कहा। ये जो है ना, एक तरफ कहते हैं कि ये एक चोला है उसके पुराना कपड़ा चेंज हो गया करते हैं, ऐसे आत्मा जो है, अब आपकी आत्मा उस एक चोले को नहीं पसंद करे तो उसने छोड़ दिया, तो आप उस आत्मा, जिसकी आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, उससे तो हम बहुत ही दूर रह जाते हैं जब हम इस ऐसी चीज उलझनों में उलझ जाते हैं। जिसकी चीज है उसके पास चलिए, उसने वहां जाना ही जाना है, ये बहुत हमारा छोटी धर्म है। मेरे से बहुत जब हम छोटी। पैदा वेरी हुए, वेल सेड। हमारे पैदा होने से पहले भी ये संसार था, जिस घर में हम पैदा हुए वो घर था, और हमें उसके लिए ये होना चाहिए कि जिस घर में हम पैदा हुए हैं, मेरा क्या धर्म बनता है कि मैं जहाँ पे पैदा हुआ हूँ, जिनके साथ मैं हूँ, जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो मेरे से खुश रहें, मेरे से दुखी ना हो। ये हमारा स्व धर्म। वेरी नाइस। नाइस तो बहुत कुछ होता है हम जी सब कुछ नाइस नहीं है। सच में नहीं, बहुत कुछ नहीं, कुछ चीजों की एक्सेप्टेंस हम चाह के भी नहीं कर नहीं पाते कर हैं, बट पाते, कुछ नहीं बातें होते, सुन के बहुत हाँ नहीं, मुश्किल अब होता है। जैसे ये बातें वही है ना, अब जैसे इन्होंने प्रतिमा जी ने बताया उनका दुख सुन के, तो अब हमें लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं एक्सेप्टेंस है। तो विल हैव टू डू। उन्होंने इतनी Yes. छोटी एज से वो उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू किया। फिर प्रॉब्लम्स तो डे बाय डे, ये तो नहीं होती कि प्रॉब्लम्स कभी रुक जाती हैं, दे वॉन्ट स्टे। एक The आज ये more है तो we कल कोई discuss, दूसरी होगी, तो उस चीज को हमने एक्सेप्ट करके चलना है, चलना ही पड़ेगा। लाइफ गोज ऑन, इसी को कहते हैं लाइफ गोज ऑन। चलने वाले तो चले Yes. गए। जीवन जो है ये प्रवाह है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन में अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। तो इससे हम जो है अपने आप को कभी भी अलग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। एक और गाना था ना, मांगने से जो मौत मिल जाती, कौन जीता इस जमाने में। इस जमाने में तो ये दुनिया तो दुखों का भंडार है, भंडार है, बिल्कुल। जितने सांस भगवान ने दिए वो लेने पड़ेंगे। क्योंकि ये दुख, देखिए ये धरती जो है ना, ये खुद ही इतनी दुखी है कि इसके ऊपर जो आएगा वो दुखी होगा। आप अपने आप को हमेशा ये समझो कि मैं ऐसी गाड़ी में बैठा हूं जिसके शॉकर नहीं है, और जो रोड है वो भी खड्डे वाली है, तो जैसे वो फुटती है ऐसे ऐसे होना है।
एक्चुअली क्या है गुरुदत्त जी, दूसरे को जब देखते हैं तो वी फील कि वो तो बहुत खुश है, दे आर कोई भी क्वाइट नहीं। हैप्पी, उनकी फैमिली में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिसको लेकिन पूछो जब वही पास दुखी। बैठ के दुख सुना जाता है तो फिर लगता है हम तो बहुत अच्छे हैं इनसे, वी आर मच बेटर, बिल्कुल। ये चीज हो जाती है। हाँ, इसी चीज में थोड़ा फिर वही वो अपने आप एक्सेप्टेंस। आपका म्यूट है संतोष जी, आपका फिर से म्यूटेड है। क्या चीज? मेरा संतोष जी का म्यूटेड है। म्यूटेड है, तो इसलिए कहा ना कि जैसे आप बात करें दुख, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई का आई का काम, काम तेरे दुख तेरे दूर करेंगे राम। राम। बहुत अच्छा। विक्की, मैं कह रही थी, आप सुन रहे हाँ हैं जी, हाँ कि जी, मेडिसिन जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसको कहीं Ignition. से भी मंगाओ, खाओ, एंड यू फील, ये प्रतिमा को भी बता कह रही हूँ कि वो करो एंड यू विल बी मच 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 बेटर। मैं बिल्कुल Okay. जाऊंगी, मैं अभी जा रही हूँ 2 दिन। डॉक्टर क्योंकि इसमें राखी जो जी है ने शेयर जैसे किया धर्म है, से रहे वो आप अपने दुख को कैमोफ्लाई कर रहे हो, है आपके अंदर ही है, लेकिन वो आपका ध्यान थोड़ा उससे जो है आपके एक्चुअली अंदर क्या होता है ताकत कि आएगी। जब बच्चे, हम खुद अब मदर्स हैं, यंग बच्चे हैं, बच्चों के सामने उस चीज को हम ज्यादा वो भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर तो सकते। बच्चों को फील होता है कि मम्मा को पता नहीं क्यों टेंशन है, मम्मा हाँ, कुछ हमसे मिस्टेक हुई है, मे बी कुछ इसलिए मम्मा टेंशन है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। बिकॉज या जब भी रूम में जाती हूँ, मम्मा की फोटो देखती हूँ, तो आई फील कि मम्मा इतनी जल्दी चले गए, मतलब कुछ बात ही नहीं हुई, ऐसे कैसे हो गया। फिर सोचती हूँ, अब लगता ही नहीं कि फोन करें, या इंडिया फोन करूं। मॉर्निंग में उठते ही काम होता था कि मम्मा को फोन करना है, फोन करना। इवनिंग में सोने हाँ, से पहले होता था फोन करना है मम्मा को। अब नो डाउट माय ब्रदर एंड भाभी दे आर नेक्स्ट टू, मतलब मैं बता नहीं सकती, दे आर टू गुड, बट फिर भी एक जो माँ तो माँ माँ। होती है वो माँ ही होती है। या, बहुत बहुत ज्यादा वो लगता है इस टाइम पे। गुरदत्त जी, आप प्लीज मेडिसिन का नाम एक बार व्हाट्सएप जरूर लिख देना, व्हाट्सएप जरूर कर सब पे लिख देना दूंगा, ग्रुप में। इग्नेशिया बिल्कुल पूरी तरह 1000। से। इग्नेशिया है नाम आया नहीं, तो मैं है, सोचा तो लिखा तो, व्हाट्सएप बट पे मैंने लिख देता नोट हूँ। नहीं किया है। व्हाट्सएप कर देना, मे बी आई विल कम टू समडे, इफ आई कम टू ब्रैम्पटन साइड तो मैं पिक ही कर लूंगी आपसे। जरूर आप आइए। मोस्ट वेलकम। हाँ जी, हाँ जी, वही ना, ब्रैम्पटन नॉर्थ जाना ही यूरोप थोड़ा में वो हो है, जाता है। गुरुदत्त जी नॉर्थ ये यूरोप में ब्रैम्पटन रहते में नहीं हैं। रहते। आप इस मेडिसिन को ऑनलाइन मंगवा सकते हो। अभी Okay. राखी जी ने शेयर किया है कि डॉक्टर Okay. रेकेविक की वेबसाइट है, इट्स जर्मन वर्जन आ जाता है यहाँ से। यू कैन ऑलवेज, तो आप चैट में देखो, मैंने लिख दिया है, इज रिटन द स्पेलिंग्स आल्सो। चेक करोगे तो So आपको same thing I will Website. recommend to my brother also because he was also too attached. तो उसको भी वो बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में सोचते हैं, तो I will Can ask recommend for to that him, at also. least he can buy it from India. He is in India nowadays, तो he can get it from there. ओ नाम भेज तेजी दूंगी डैडी मैं जितनी उनको हुई। भी। हाँ, देख। Okay, thank you, Gurudat ji. That was बहुत an अच्छा amazing रहा, that was session. very good. बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली Actually, है। we were Thank you talking very about much. eating disorders, and we have, because everything is so much related to our emotions. We are all emotional beings. Human beings are really emotional beings. So everything gets related to emotion. So I have three pointers I would like to point out here. As I'm a student of naturopathy also, I'm learning to be a naturopath. So what we learn is that the body requires food, and as the body requires food, it will ask for food. So even if your body is not that, if your body Yeah. is not asking for food as much as it would earlier, so maybe the body does not require that much food. This is what they teach us. But of course, we have to be emotionally healthy. If emotion is the reason that you are not feeling hungry, we should look after it. And what Gurudaji was talking about is, I think it was about monodiets. Monodiets are given a lot of importance in naturopathy also. We like people, we would like people to eat single type of food at one point of time. And eating healthy means eat the food in the natural way it comes. So this is what we strongly believe in.
the way it comes. Let us not cook the food so much. Let us not kill the germs, kill the nutrients as we all keep on doing. We keep on frying the veggies, सब्जियों को भी तड़के लगा के, and so many spices डाल के, खूब सारा हम उनकी जो ओरिजिनल जो उनकी न्यूट्रिएंट्स हैं उन बेचारों को पता नहीं वो कहाँ भाग जाते हैं. वो ढूंढते रहते हैं, इधर उधर बचने की कोशिश करते हैं, पर उनको मार के ही छोड़ते हैं हम लोग. अच्छी तरह सोड़ो, अच्छी तरह तड़के लाओ, अच्छी तरह सौटे करो, सौटे nicely. Okay, so these are the few tips. Eat more of salads. Narinder ji, if your body is not asking for roti, eat more of salads. Eventually your body will ask for roti also, because your emotions. Yeah, it's okay. Eat little, eat small portions, eat little, eat more frequently, eat little. Don't think of eating. Don't think that you were eating earlier bigger portions, so you want, maybe your body does not want bigger portions now. Eat little portions, it will come to the normal level. And of course, the emotional health you can take care by taking these medicines. And also, as we're not able to go for a walk because the weather is also not permitting, I think, go for a walk inside your home. Walk from one corner to the another. Just do anything. Try to involve yourself in household chores. Dusting करने शुरू कर दो चाहे घर साफ है. तो you are such a good artist. You're such a good artist yourself. You are doing so much of knitting and everything. So ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो आपको पता ही हैं. We all know. But somehow when we are not that emotionally that happy or stable, we forget कि अरे हम ये भी करते होते हैं, हम ये भी करते होते हैं. तो मैं हाँ जी, I know that. I know you would be taking very good care of yourself, and that we all are very particular about. So this is my take on this eating disorder session, that eat what you require, eat not what you relish all the time. Sometimes we do eat, we should indulge sometimes, but I think we should eat what we require and not what we relish. Not every time, okay? So thank you so much, Gurudaji, and thank you everyone for the participation. And of course, if you have any other pointers, you can really mention them. And I just wanted to point out to Hania, yes, you are right, wraps are very good food these days. The dietitians also recommend wraps, and even when my kids were younger, I would give them a lot of rice. When I would cook rice for them, I would put so many veggies in the rice, so many veggies, and even dals I would put in the rice, so that they get all the nutrients from one meal. Because otherwise, if you ask them to eat sabzi, they will not eat. If you ask them to eat sabzi kha lo, no, I don't find it tasty. So राइस में पता नहीं क्या क्या डाल के मैं उनको खिलाया जब वो छोटे थे. अब जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने मुझे बहुत कहा कि आप बड़े धोखे देते थे हमको, पता नहीं क्या क्या खिला देते थे, ये क्या क्या कि पुलाव ऐसे होते हैं. So anyways, so these are these small things, just little things, and thank you. Yeah, anyone else, if you want to make a point somewhere. That was very interesting. That's all I'm going to say. Yeah, definitely. Yeah. Thanks to Meeta ji and thanks to Gurudat ji also for this wonderful session, because these are the basic things and we just ignore them in our daily routine. So we learn so many things. Actually, these sessions are like reminders. We need to remind ourselves. Definitely. That is why. Yeah. We know everything. ऐसे थोड़ी है कि हमें पता नहीं है, हमें पता सब कुछ होता है, बट हम थोड़े थोड़े अपने आप को नॉक याद करते हैं. कोई हमें याद कराता है तो कहते ओह यस, ये बात भी ठीक कह रहे हैं आप. पता तो सबको सब कुछ होता है, पर याद कराने की बातें हैं. और एक दूसरे को हम याद कराते रहें, इसी से हम इसी को कम्युनिटी लिविंग कहते हैं. दिस इज व्हाट वी डू इन मोक्षा, राइट? एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एंड वी ट्राई टू बी देयर फॉर ईच अदर and help each other in this manner. Sure. और अपने बॉडी की, अपने माइंड की बात जरूर सुनो. Yes. जैसे इन्होंने पहले कहा
कि भाई जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत कुछ आता है कि पानी इतना पीते हो, ये गर्म पियो, ये ठंडा पियो, वो करो, लेकिन मौसम के हिसाब से। और दूसरी बात ये, जैसे कहते हैं ना कि ठंडा पानी या गर्म पानी पीने, ये करने, देखिए हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है जो नॉर्मल रहता है। अगर आपने उस टेम्परेचर को नॉर्मल रख लिया किसी भी हिसाब से, तो आप हेल्दी रहोगे। देखिए बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बहुत जरूरी है। दूसरी बात है इसमें जो है आपका जो अल्कलाइन और एसिडिक मीडियम जो है वो बराबर रहना चाहिए। तो अगर वो बराबर है तो सब कुछ ठीक है। तो अगर इन दोनों को बराबर रखेंगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। सबसे उसके लिए जरूरी यही है कि आपके अंदर की जो अग्नि है वो बराबर रहनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी की अग्नि बराबर है तो आई डोंट थिंक कि किसी तरह की कोई आपको तकलीफ हो सकती है। और वो अपने अंदर की जो कहते हैं ना, किसी भी बात के लिए कोई जुनून भी होता है, कहते हैं आपके अंदर की आग जलती है। ये जुनून क्या है? आग है। कोई भी आर्टिस्ट जो है उसके अंदर एक आग होती है जो उसको ऊपर तक लेके जाती है। जो वो फ्लेम है ना, फ्लेम ऊपर जाएगी। तो ये सारी जो चीजें हम जैसे मैंने कहा समझते हैं, समझना और उसको गुड़ना, पंजाबी कहते हैं गुड़ना बहुत जरूरी है। अगर उसको गुड़ा नहीं तो कोई फायदा नहीं। आपकी जेब में $1000 रखे हुए हैं आपने, और $100 की जो है ना जैकेट लेके आपकी सर्दी कम हो सकती है। तो अगर आपने वो $100 की नहीं ली तो क्या फायदा? क्या पैसे का क्या फायदा? पैसा जो है वो आपको यूज करने के लिए, हम किस लिए पैसा कमाते हैं? उसका यूज करने के लिए। तो हर चीज को यूज करना अच्छी तरह से, लेकिन उसका यूज अच्छी तरह से होना चाहिए। इसी तरह जो है आप आज मेन जो है हमारे खाने की बात की थी, तो खाना जो है ये हमारा बड़ा जरूरी है, और उसको किस तरह से हमें यूज करना है इसकी हमें पूरी समझ होनी चाहिए। जिस दिन हमने इस चीज को अपना लिया तो उसी दिन हमारी बहुत सी जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाए। मैंने बहुत से पेशेंट ऐसे देखे हैं, इनको आर्थराइटिस है, उनको जो है आपके अंदर जो है प्रोटीन आपके अंदर ज्यादा जा रही है, प्रोटीन कम करनी है क्योंकि यूरिक एसिड बन रहा है आपके अंदर, और तरह के कई एसिड ज्यादा बन रहे हैं। लेकिन वो कहेंगे नहीं जी राजमा के बगैर तो मैं रह नहीं सकता, मुझे तो बचपन से राजमा खाती आई हूं मैं तो। राजमा चावल तो सबको पंजाबियों को इतने पसंद है भाई, लेकिन हाँ जिस दिन वो खाते हैं उस दिन मेरे को तकलीफ हो जाती है। अरे भाई जिस पता है कि इससे तकलीफ हो रही है तो उसे छोड़ देने में भला खाओ। बिल्कुल। वो तो यहाँ तक पंजाबी में कहावत है कि जरा ना ਕੰਨ पे सोना ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਊਂ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਪਿਆ ਹੱਥ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੇ। ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠ ਜੱਪੇ ਖੋਲ, not like it, ਪੱਠ ਪੈ ਸੋਨਾ, हाँ पट पे सोना ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੇ। हाँ। तो सब हम समझते हैं, हम जिंदगी के उस दौर से निकल चुके हैं जहाँ के भाई हमें कोई समझाया जाए, लेकिन अब वो जो समझा हुआ है उसे अपनाने की जरूरत। बिल्कुल जी, अपनाते भी, पता भी सब कुछ है, पर पता नहीं क्या। यही तो तभी तो okay. जो हम इंसान है ना, Absolutely okay. भ्रमों में हम है, वो तेरे तरफ से keep सबको saying- नमस्ते। जो चक्कर है वो कभी नहीं I है। डॉक्टर keep के saying appointment all है, the time, it's ठीक है जी, ओके it's ओके। सब okay हमारा not to be क्या है? okay. Sometimes और it is okay Bye, not to be everyone. okay. 5 Bye. मिनट है बाय हमारे। बाय बाय। जी। इस 5 मिनट में कोई हंसी खुशी की कोई बात किसी ने कोई और बताना हो तो हो जाए। तो नरेंद्र जी कई बार ऐसे भी होता है कि इट इज ओके नॉट टू बी ओके। आई कीप सेइंग दिस ऑल द टाइम। तो कई बार हमें इट्स ओके नहीं, आप चलता है। कोई चंडीगढ़ की अच्छी सी, कोई इंडिया की अच्छी सी बात सुनाओ। हाय इंडिया की कोई अच्छी सी बात, मैं बड़ा दिल करता इंडिया है मैं की तो अभी दिलदार अभी सुनाऊं। रिसेंट पंजाबी यूनिवर्सिटी जाके आए हैं पटियाला। He has attended a very good function तो over इस there. बार क्या है कि मैं अपनी बात बता देती हूँ कि पटियाला पता नहीं क्यों बहुत खींच रहा है। इनफैक्ट मुझे ट्यूसडे को भी जाना था, बट आई वाज सो एग्जॉस्टेड ऑफ गोइंग टू पटियाला अगेन एंड अगेन कि आई रिफ्यूज्ड। मेरे गुरु, मेरे जो टीचर हैं अदब के, मेरे उस्ताद जी हैं, उनकी बुक कोई रिलीज होनी थी, उनको कोई अवार्ड की थी। But then I have made many new friends, or I'm adding to many new people in my friend circle. So this is about Chandigarh, and मैंने सॉन्ग का तो आपको बता ही दिया। अब वो सॉन्ग कैसे रिलीज होगा तो वो करेंगे जैसे, तो उस सॉन्ग पर हमने भंगड़े पाने हैं मिलके, ठीक है।
It's a totally foot tapping song. फिर हम फुट टैपिंग सॉन्ग है तो किसी के फुट को रुकने नहीं देंगे, चाहे वो टूटा हुआ है चाहे साबुत है. So yeah, it's like that. Everything is otherwise fine. और stay safe, take care. अब मैं जितना नेचुरोपैथी के जरा भी 2-4 अपनी क्लासेस ज्वाइन कर देती हूँ तो ये वायरस और ये सब चीजों के अगेंस्ट इतना वो बोलते हैं कि मुझे मेरा माइंड बड़ी बुरी तरह जंबल ऑफ कंफ्यूजन. इधर मैं ओमिक्रॉन की न्यूज पढ़ती हूँ और वैक्सीन और ये सब की पढ़ती हूँ तो उधर वो कहते हैं कि ये सब एक फार्स है. दिस इज बाय द आई मीन this is a nexus by the doctors and the pharma companies. They want to make money, and this is why they create such things that the whole world, they regulate and rule over the whole world because they want to make money. And they keep us, on क्या कहते हैं टेंटर हुक्स. हमको या खड़ा रखते हैं वो एक टांग पे कि ये हम लोग जो है इन चीजों में उलझे रहें और अपने पैसे इनको देते रहें ताकि ये बहुत रिच हो सके. मीता जी, ये भी बात आपकी ठीक है जहाँ तक है, लेकिन चीज ये है कि नेचर को हमने नेचर रहने नहीं दिया है. हाँ, ये तो है ही है. इतनी इंडस्ट्री ज्यादा हो चुकी है और अगर हम एवोल्यूशन थ्योरी पे जाएं तो एवरी डे सब म्यूटिंग होती है. हमारे अपने कितनी म्यूटेशन हो चुकी हुई है. वैसे भी हमारा हर 12 साल के बाद म्यूटेशन बॉडी की होती है. तो ये जो वायरल वगैरह आए हैं ये म्यूटेशन है नई तरह की. सो ये कई तरह के इसमें जो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का योगदान है और दूसरा जो इतने ये जंगल कटे हुए हैं उनका योगदान है. उससे ये कई तरह की चीजें पैदा हुई हैं. कई चीजों को खत्म करने के लिए नेचर है. सो इससे बचना जो है वो बहुत जरूरी है. ये नहीं कि ठीक है हर तरह के लोग हैं, कई तरह की बोली जाती है, लेकिन फिर भी मैं जनरली में बात करता हूँ. मैंने एक अपने बड़ी हमारी कॉन्फ्रेंस थी उसमें बात हुई थी. मैंने कहा अगर यहाँ पे किसी को हार्ट अटैक आए तो क्या आप नेचुरोपैथी या होम्योपैथी करोगे या 911 को कॉल करोगे? सो पैथी कोई भी बुरी नहीं है. यहाँ पर भी आपकी सेहत या आपकी जान बचती है, हम उसके ऊपर ही बात करेंगे. सो इमरजेंसी में तो हमें देखते हैं. हाँ, हर चीज का अपना अपना एक स्थान है, उसकी एक लिमिटेशन है. उस लिमिटेशन के अंदर अगर रहेंगे तो कुछ भी तकलीफ नहीं होती. नेचर की तरह रहना बहुत जरूरी है, लेकिन हम नेचर को नेचर रहने दें तभी होगा ना. आज की डेट में आपको क्या वो सही पुरानी तरह की मूलियां मिल रही हैं या पुरानी तरह का वो गन्ना मिल रहा है? नहीं ना. लेकिन फिर भी हमारा जो शरीर है वो इतनी खाद वाले इतने चीजों को भी, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कुदरत ने, इस नेचर ने, कि इसके अंदर अपने आप जो उसके एंटीजन पैदा हो जाते हैं. तो जैसे कि जहर है ना, थोड़ा थोड़ा जहर अगर आप दोगे तो वो जहर वो मारेगा नहीं आपको, बल्कि आप उस जहर को मारने वाले बन जाओगे और खुद जहर बन जाओगे. जैसे कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजे विष कन्या बनाते थे, उनको थोड़ा थोड़ा जहर देते दूसरे को मारने के लिए. सो ये सब चलता रहता है. लेट अस एंजॉय आवर लाइफ. जिस तरह से जिस दायरे में हम हैं उस दायरे का आनंद लो. Absolutely. मेले में गए हो तो मेले का आनंद लो, मूवी देख रहे हो तो मूवी का आनंद लो, बच्चों में बैठ के लूडो खेल रहे हो तो लूडो का आनंद ले लो. Amazing. Thank you. Yes. अब तो यहाँ भी बूस्टर डोज दे रहे हैं. आई थिंक 50+ को दे आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम December 8. नहीं, December 13 से जो है वो बुकिंग शुरू हो रही है. ओके. और पहले जो है वो उसके बाद में ये अपने शुरू करेंगे नए साल से पहले बुकिंग कर रहे हैं. बुकिंग कर रहे हैं. ओके. ओके जी, चलो आप. चलो ओके मीता जी. ओके गिरधर जी. थैंक यू सो मच. भाईचारा यही पैगाम हमारा, पैगाम हमारा. थैंक यू सो मच. थैंक यू Thank you, everyone. शुभ रात्रि. अमिताभ बच्चन की तरह नमस्कार. वेरी गुड सेशन. नमस्कार. नमस्कार. थैंक यू.